Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Brokers and Analysts Conference of Aradhya Disposable Industries Limited, that is ADIL, to discuss the upcoming SME IPO on NSE Emerge. Before we proceed with today's call, we will start with playing the corporate video of Aradhya Disposal Industries Limited. Thank you. As global demand for sustainable food contact packaging soars toward $100 billion by 2030, India is poised to power one-fifth of that momentum. Environmental mandates, rising consumer eco-awareness, and rapid growth in food delivery and QSR sectors are accelerating the shift to sustainable packaging. We are Aradhya Disposal Industries Limited, and we are uniquely positioned to ride this powerful tailwind. Founded in 2014 by first-generation entrepreneur Sunil Maheshwari, Aradhya is backed by a team of professionals comprising of seasoned bankers, chartered accountants, and management graduates. Aradhya Disposal was born from a conviction to deliver food-safe paper cup blanks and host of food-grade specialty paper products. Our commitment to quality and eco-friendly solutions is highlighted by sustained investments to adopt biodegradable and eco-friendly products, catering to both the domestic and international markets. Today, we operate two fully automated production units spanning over 52,151 square feet in Dewas, situated in Madhya Pradesh. Our strategic presence enables us procure all of our raw materials and also sell our products within 500 kilometers radius, with a capacity of 15,000 metric tons per annum. We turn pulp into ISO-certified paper solutions, from 30 GSM to 500 GSM products. You can experience Aradhya's products across diverse sectors, including packaging for FMCG industries, automobiles, lubricants, jewelry, bakery items, disposable items, stationery, labels, dairy and food, personal care, custom packaging, wellness and Ayurveda products, and consumer brands. The company clocked a revenue of 113.7 crore in FY25 with a PAT of rupees 10.27 crore. Our EBITDA margins stood at healthy levels of 15.7% in financial year 2025, growing from 4.1% in FY23. 88% of our sales run through domestic markets and 12% cater to 16 export destinations across the Gulf to the UK and Africa. Our strength lies in barrier-coated paper technology, 5-roll coating lines, calendaring units, and moisture control systems imported from global leaders. Combined with our central Indian location, we achieve unmatched quality, logistics efficiency, cost optimization through constant innovation. We are eyeing the listing at NSE Emerge with our IPO launching from August 4 to August 6, 2025. We aim to raise 45.10 crore at a share price band of 110 to 116. The lot size of 1,200 shares. Proceeds will be deployed towards working capital, capital expenditure for new plant and machinery, including barrier-coated production lines, and for repayment of term loans. Our strategy is centered on value creation through a mix of 3 pillars: sustainable growth, market expansion, and operational efficiency. We are determined to expand our biodegradable product range to improve our margins, riding the higher adoption in international markets going forward. Join us as we pioneer a paper revolution where every sheet nurtures sustainability, every margin rewards responsibility, and every investor enable a greener future. Let us begin with the introduction of the management team. We have with us today Mr. Sunil Maheshwari, Promoter and Managing Director, and Mr. Anil Maheshwari, Promoter, Director, and CFO. Kambata Securities Limited are the book running lead manager to the issue.
And Mr. Chandan Mishra, Head of Merchant Banking at Kambata Securities Limited, is also present on the call with us. At this moment, all participants are in the listen only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, you may click on the Q&A tab to ask a live question. Please note that this conference is being recorded. Aradhya Disposal Industries Limited is looking at raising funds through the IPO. The company is offering up to 38,88,000 equity shares as fresh issue. The price band is set between rupees 110 to rupees 116. The issue has opened today on Monday, August 4, 2025 and closes on Wednesday, August 6, 2025. The issue would list on NSE Emerge platform, and to discuss more on it, I would now like to request Mr. Sunil Maheshwari, promoter and managing director, to give his opening remarks. Thank you and over to you, sir. नमस्कार सर, मैं आप सभी को अपनी एक व्यावसायिक यात्रा के बारे में ब्यौरा देना चाहूँगा कि मैंने ये व्यवसाय कैसे चालू किया। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि कभी-कभी अपनी ज़िंदगी अपने को एक ऐसे मोड़ पे ले आती है, जहाँ छोटी-सी बात भी आपको उस जगह पर पहुँचा देती है, जहाँ पर आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। हम हमारी अनाज मंडी की दुकानों पर खड़े हुए थे। जब खड़े हुए थे तो एक हमारा किराएदार आया, उसने वैसे ही कैजुअल पूछा कि क्या भैया आप डिस्पोजेबल की मशीन में निवेश करना चाहेंगे? हम भी सोच रहे थे कि बदलते वक्त के साथ हम भी कुछ नया करें, क्योंकि अनाज के भाव में अनिश्चितताएं एक्सचेंज उनके आने के कारण बहुत ज्यादा हो गई थी। सुबह अनाज में 200 रुपए की तेजी होती, शाम को 200 की मद्दी हो जाती। किस फंडामेंटल के कारण हुई, कोई उसके पीछे कोई रीजन नहीं हुआ करता था। केवल एक्सचेंज की जो तेजी मद्दी होती थी उसके कारण ये तेजी मद्दी हो जाया करती थी। तो हम भी एक सेक्टर देखना चाह रहे थे जहां पर हम नया कार्य चालू कर सके, निवेश कर सके। हमने उस बंदे से बोला चलो मशीन देख करके आते हैं। जब हम वहां पर मशीन देखने गए और हम मशीन देख रहे थे तो उसने जो मशीनें दिखाई हमको, पत्तल धोना और प्लेट बनाने की मशीनें दिखाई उसने। हमने जब पूछा उससे कि इसके रॉ मटेरियल्स क्या है, तो उसने हमें बताया कि जो फॉरेन का वेस्ट रॉ मटेरियल आता है पेपर रोल्स, उससे ये बनता है। वहीं पर एक कोने में मशीन चल रही थी जो पेपर कप बनाने की थी। हमने बोला कि भाई ये मशीन क्या है, तो बोले वो पेपर कप बनाने की मशीन है। तो मैंने कहा चलो वो भी देखते हैं। जब वो देखी हमने तो वो मशीन हमको बहुत अच्छी दिखी। तो हमने पूछा कि इसका रॉ मटेरियल, तो उसने बोला साहब ये वर्जिन पेपर आता है और ये इससे बन रहा है। आप देखें बड़ी साफ सुथरी मशीन दिख रही थी, बहुत ही अच्छी चलती हुई दिख रही थी। जब हमने बोला उससे कि भाई बाकी मशीनें तो हमें पसंद नहीं आई, ये प्रोडक्ट हमको क्लिक होता है और हमको ये पसंद आया, तो उसने बोला भैया ये तो अपन नहीं ले सकते, बोले ये इसका काम का अनुभव मुझे नहीं है। तो मैंने बोला यार मुझे तो यही पसंद आई है। बोले भैया ये पेपर कप बाजार में नहीं बिकेगा, ये 35 पैसे का होता है और प्लास्टिक का 7 पैसे का कप होता है। बोले इसको बेचना बड़ा मुश्किल रहेगा, तो ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। परंतु हमें वो काम क्लिक हो गया था। हमने दोबारा उससे पूछा, उसने दोबारा मना कर दिया। फिर हमने सोचा क्यों ना, ये तो मना कर रहा है परंतु अपने को ये अच्छी लग रही तो अपन इसको करके देखते हैं। हम लोगों ने वहीं पर 2 मशीनों का ऑर्डर दे दिया। ला करके वो 2 मशीन हमने 6 महीने चलाई। उसको चलाना भी अपने आप में टिपिकल था, क्योंकि वो नई फील्ड थी, नए लोग थे, सब चीजें नई थी। उसमें जो टेक्निकल कार्य मशीन में जो प्रॉब्लम आती थी, हर 4 घंटे में उसकी सॉफ्ट ट्यूनिंग करना पड़ती थी। उसके नए ऑपरेटर्स भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो कोई ऐसी आइटम नहीं थी कि जो बाजार में हर किसी के पास हो। तो उसके ट्रेंड ऑपरेटर्स भी नहीं थे। 6 महीने हमने मशक्कत करके, मेहनत करके उस मशीन पर को सेट किया और चालू की। और चालू करने के बाद हमें उसमें थोड़ी सी ग्रोथ नजर आई। जब ग्रोथ नजर आई तो हम लोगों ने, मैं और अनिल, साथ में मेरी वाइफ शशि माहेश्वरी, तीनों ने मिलकर हम लोगों ने कंपनी चालू की। अनिल पूरा मार्केटिंग का काम देखते थे और मैं पूरा मैनेजमेंट का काम देख रहा था उस समय। कैसे प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करना है, कैसे क्या करना है। तो हम लोगों ने एक आराध्य डिस्पोजल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई और कार्य चालू कर दिया। जब कार्य चालू किया तो 16 पेपर कप की मशीनों से हमने कार्य चालू किया था। और 16 पेपर कप की मशीनों से जब हमने काम चालू किया तो हमें रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम जाने चालू हुई। रॉ मटेरियल उन दिनों में केवल इंडिया में 2 जगह ही मिलता था इसका, बाकी जगह पर रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं था। रॉ मटेरियल बनाने वाली भी कंपनियां 2 या 3 हुआ करती थी उस समय, और बाकी कंपनियां सब ट्रायल फेज में थी। जब हम लोगों ने काम चालू किया तो 16 पेपर कप मशीनों से कार्य चालू किया। जब रॉ मटेरियल की दिक्कत चली तो हम लोगों ने सोचा कि इसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाया जाए, ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो।
हम लोग उसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन में गए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तैयारी की अनिल और मैंने मिलकर के। तो हमने जब मशीनों की सूची बनाई तो पेपर कप की प्री कोटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, पंचिंग मशीन, स्लीटिंग मशीन, शीट कटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट थी। और ये जो रिक्वायरमेंट थी, ये तकरीबन सारी जो मशीनें थी, ये डालने का हम लोगों ने प्रण किया और चालू किया, और इसको हम लोगों ने डाला। जब डाला तो 2015 में स्टार्टिंग में हम लोगों की रॉ मटेरियल की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई, और रॉ मटेरियल हमारे पास इसका अतिरिक्त बचने लगे। तो अनिल ने हमें बोला 2016 में कि भैया अपन इसको बाजार में भी बेचना चालू करते हैं। हम लोगों ने इसको बाजार में बेचना चालू किया, तो रॉ मटेरियल भी बाजार में हमारा बहुत अच्छा बिकना चालू हो गया। 2017 में फिर हम एक एक्सपांशन लेके आए। यहाँ पर जो हम एक्सपांशन लेके आए, वहां पर हमारा सेकंड जनरेशन से चैतन्य सोनी भी हमारे साथ जुड़े, और वो भी हमारे साथ आ गए। उन्होंने एक जो आइसक्रीम का पेपर होता है पैकेजिंग का, जो 700 ग्राम का जो आइसक्रीम का कटन पैक होता है, वो पेपर डेवलप किया इन्हीं मशीनों पर। उस समय पे आइसक्रीम में लेमिनेशन हुआ करता था दोनों तरफ। उस लेमिनेशन को उन्होंने एक तरफ पी कोटिंग में कन्वर्ट किया। आइसक्रीम के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन लोगों से मिले, वहां पे पेट्रोल का अप्रूवल कराया। अप्रूवल कराने के बाद जो आइसक्रीम के कन्वर्टर हुआ करते थे बक्से के, पेपर कंपनी का जो अप्रूवल था वो उनको दिखाया, और कन्वर्टर्स को ये नई चीज दी और पेपर को कन्वर्टिंग करके वो बेचना चालू किया। 2019 में फिर हम एक एक्सपांशन लेके आए, जो कि बहुत बेहद ही रोचक एक्सपांशन था। यहाँ पे हम लोगों ने एक रिपल प्रोडक्ट चालू किया। जो रिपल प्रोडक्ट, आप मान के चलिए आज की तारीख में हमारी उसमें यूएसपी है, और वो हमारे अलावा और कोई नहीं बना पा रहा है भारत में, और चाइना में भी। वो जो प्रोडक्ट है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो 2 लेयर प्रोडक्ट हुआ करता था, जहां पर एक तरफ 115 डिग्री टेम्परेचर पे मशीन पे एक जो लेयर होती थी वो सिल हो जाती थी, और दूसरी जो लेयर है वो 250 डिग्री पर उस पेपर पे उसको चिपकाना होती थी। तो वो जो इनोवेशन हम लोगों ने किया कि 115 डिग्री का पेपर कोटेड पेपर जो 250 डिग्री टेम्परेचर की मशीन पे चलाया, वो एक अपने आप में असंभव चीज थी जो हमने कर दिखाया। हमारी आर&डी टीम में बहुत कुछ अच्छे लोग थे जो जिन्होंने हमारा ज्वाइन किया हुआ था। ये उनकी मेहनत और हमारी सोच का परिणाम था। ये पेपर आज भी हमारी यूएसपी है। 2022 में और 2019 में कोविड के समय में एक और हमारे साथ नई चीज चालू हुई कि चाइना में जो प्रॉब्लम आई, उसके कारण हमें अपॉर्चुनिटी मिली गल्फ में एक्सपोर्ट करने की। वहां पर उन दिनों में चाइना में जो प्रॉब्लम चालू हुई, तो गल्फ वाले उनसे प्रोडक्ट लेने में हिचकिचा रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कीटाणु हमारे यहाँ आ जाए और हम लोग भी परेशान हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें वहां पर उस मार्केट में इंटर होने का सौभाग्य मिला, और हम लोग वहां पर इंटर हुए, और हमारे वहां पर सभी तरह के पेपर कप और रिपल के कप बिकना चालू हुए। 2022 आते आते जब कोविड खत्म हुआ और चाइना फिर एक्टिव हुआ, तो चाइना ने उस मार्केट में वापस अपनी जो खोई हुई जगह थी वो वापस वहां पर ही पहुंच गया, और हमें वापस दिक्कत होना चालू हुई। जब हमें दिक्कत होना चालू हुई तो हम उस मार्केट में गए, और वहां पर कुछ जो भारतीय लोग थे जो ये कार्य करना चाहते थे कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करें, उन लोगों से मिले, उनको पेपर कप मशीन डालने की सलाह दी, और कुछ लोगों को हम लोगों ने पेपर कप मशीन वहां पर डलवाई। इन्वेस्टमेंट उनका था, पेपर कप मशीन उन्होंने डाली, और सेटअप पूरा हम लोगों ने कराया। यहाँ तक कि लेबर भी इंडिया से हम लोगों ने वहां पर भेजी, ये कंडीशन पे कि रॉ मटेरियल वो हमसे लेंगे। वो टाइप हमारा चालू हुआ, वहां पर हमारा रॉ मटेरियल अच्छी मात्रा में लगना चालू हुआ। जो 4 से 5 टन एक कंटेनर में मटेरियल जा रहा था, वो 28 टन मटेरियल जाना चालू हुआ फुल कैपेसिटी पे कंटेनर्स की। तो हमें लोगों को भाड़ा भी कम लगने लगा, और साथ में पैरिटी भी आ गई, और हम लोगों की एक रॉ मटेरियल की सप्लाई पूरे गल्फ में चालू हो गई। जब पूरे गल्फ में रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू हो गई, उन दिनों में इंडिया में भी पेपर कप एक कमोडिटी आइटम बन गया था, और कुटीर उद्योग की एंट्री चालू हो गई थी। जब कुटीर उद्योग की एंट्री चालू हुई तो उन्हें तो केवल रॉ मटेरियल पे ही जीएसटी लगता, और हमें फिनिश गुड्स पे जीएसटी लग रहा था। जो जीएसटी था, रॉ मटेरियल करीब 90-95 रुपए किलो था, फिनिश मटेरियल 140 से 160 रुपए किलो था। तो जीएसटी का एक बहुत मोटा फर्क हो गया था। उन लोगों को जीएसटी केवल रॉ मटेरियल पे देना था, क्योंकि उनके पास जीएसटी के नंबर ही नहीं थे, और हमें फिनिश गुड्स पे जीएसटी देना पड़ रहा था। उनके साथ में लेबर नहीं लगती थी, वो घरों के अंदर 1 या 2 मशीन डाल लेते थे, उनके ओवरहेड्स नहीं थे। तो इसी तरीके से हम एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे।
ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक साहसिक निर्णय लिया और पेपर कप मशीनें सारी एक साथ बेच दी, जो कि उस समय तक हमारे पास 80 से 100 मशीन के तकरीबन थी। वो सारी मशीनें हम लोगों ने 2022 में बेच दी और पूर्णतः हम लोगों ने रॉ मटेरियल पे हमारा कार्य को चालू किया और जिन लोगों को मशीनें बेची उन लोगों को हम पूरी तरीके से रॉ मटेरियल देना चालू किया हम लोगों ने सोचा कि यार अब तो हमारा केवल एक ही आइटम बच गया है, केवल हम रॉ मटेरियल पे हमारी डिपेंडेंसी रह गई है। ऐसी परिस्थिति में कोई भविष्य में तकलीफ गई तो क्या करेंगे। उन्हीं दिनों गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध कर दिया था और तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पर्यावरण के अनुकूल कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जाए जो कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो और मनुष्य के लिए भी सुरक्षित हो। तो हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल पेपर प्रोडक्शन का कार्य चालू किया और कार्य चालू करने का सोचा। जब मशीन पे R&D किया तो एक मशीन हमें जो ऐसी मिली जो इंडिया में दो ही जगह लगी हुई थी, पदमजी पेपर मिल और ITC पेपर मिल। हम लोगों ने जब उस मशीन के बारे में जानकारी निकाली तो बहुत आसानी से नहीं मिली क्योंकि उनके R&D साइन किए हुए थे मशीन मैन्युफैक्चरर से। मशीन मैन्युफैक्चरर कहाँ का है वो भी लोकेट नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे हम लोगों ने लोकेट किया, लोकेट करने के बाद जाकर के उससे मिले तो वही R&D का एग्रीमेंट हमने उससे साइन किया और मशीन डालना निश्चित किया। 2023 में जब मशीन का ऑर्डर किया, 2024 में उसने हमको मशीन की डिलीवरी दी और इंस्टॉलेशन हुई हमारे यहाँ मशीन। वहीं पे हमारी सेकंड जनरेशन से सलोनी माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी और कार्य करना चालू किया। और बायोडिग्रेडेबल जब पेपर की हमारी रेंज आई बाजार में तो एक ऐसी रेंज आई जो हमारी कल्पना से भी परे थी। यहाँ पर हम जो पेपर प्रोडक्शन कर रहे थे वो विविध इंडस्ट्रियों में काम में आना चालू हो गए थे, जैसे कि पैकेजिंग इंडस्ट्री, फूड ग्रेड पैकेजिंग इंडस्ट्री, इसके बाद लुब्रिकेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री और आपके लिक्विड पैकेजिंग इंडस्ट्री में विशेषकर कार्य में आ रहे थे। साथ में ही जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम में आ रहे थे उसमें बर्गर रैपिंग के काम में आ रहे थे, कोई ऐसी चीज जो ऑयली हो उसके लिए काम में आ रहे थे जिससे कि ऑयल नीचे नहीं आए, तो वो भी काम चालू हो गया था इसमें। और इसमें OGR MTR पेपर जो कि ड्राई फ्रूट्स पैकेजिंग में काम में आते हैं, जिसका मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों ही बाहर नहीं जाए, स्मेल दोनों ही बाहर नहीं जाए, उस चीज के लिए काम में आते हैं। ये प्रोडक्ट एक अपने आप में प्लास्टिक को पूरी तरीके से रिप्लेस करने वाला प्रोडक्ट है जो कि प्लास्टिक को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहा है। अभी हम लोगों ने 2024 में ही कुछ एक प्रोडक्ट और निकाले जो कि बैक ओवन पेपर का प्रोडक्ट है। जब आप बर्गर को कहीं से लेके आएंगे तो उसको पेपर के अंदर ही रैप करके सीधा माइक्रोवेव में रखेंगे। 400 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो प्रोडक्ट जलेगा नहीं और बेकरी के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा। अभी बेकरी में जब लोगों को नीचे की तरफ कुछ प्रोडक्ट लगाने को होता नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें कांच के प्लेट्स, कांच की चीजें यूज करना पड़ती है, चीनी की चीजें यूज करना पड़ती है। ये सीधा ही पेपर में रख करके वो बेकरी के अंदर डाल देंगे और प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा फिनिश। तो ये प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा जो हम एक्सपांशन में लेके आना चाह रहे हैं। अभी जो हम एक्सपांशन लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम 15 से 16 करोड़ रुपया मशीनरी में एक्सपांड कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपया कैपिटल में एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं। बाकी जो पैसा है हम अदर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। यही हमारी यात्रा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 साल में जो कि हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी आज की तारीख में 15,000 टन है, 113.7 करोड़ का हमारा रेवेन्यू है। 10 कंट्रियों में हमारी सप्लाई है, कि हमारी बहुत अच्छी R&D की टीम है। अभी जो हमारा एबिटा मार्जिन है वो 15.7% है, पेट मार्जिन हमारा 9% है। 33 लोगों की हमारी टीम है, 2 हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नेक्स्ट। ये हमारी पूरी ग्रोथ का चार्ट है। 2014 में हम लोगों ने 16 पेपर कप की मशीन से कार्य चालू किया। 2015-16 में हम लोगों ने पहली बार 10 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया। 2016-17 में हमारा 25 करोड़ का रेवेन्यू अचीव हुआ। यहाँ पर हम एक एक्सपांशन लेके आए। 2018-19 यहाँ पर फिर हम लोग एक एक्सपांशन लेके आए हैं। 2021-22 वो हमारे लिए एक स्वर्णिम पल था जब हमारी
और रेवेन्यू 50 करोड़ रुपया टच हुई। 2022-23 में ग्रोथ होकर के 75 करोड़ पे हमारी रेवेन्यू टच हुई। 2024 में हम बैरियर कोटिंग मशीन लेके आए और 2025 में हमारा टर्नओवर 110 करोड़ गया और जो मार्जिन थे वो 10 करोड़ रुपए के आसपास टच हुए पहली बार। आगे नेक्स्ट, हम लोग 3 डायरेक्टर्स हैं, सुनील माहेश्वरी, अनिल माहेश्वरी, जो कि सीएफओ है और मार्केटिंग में इनका बहुत अच्छा अनुभव है। इन्होंने यूरेका फोर्ब्स में भी डोर टू डोर मार्केटिंग किया हुआ है और वहां पर भी ये बहुत अच्छी पोस्ट पर गए और एज ए ग्रुप लीडर इन्होंने वहां से कार्य छोड़ा था, तो इनका सेल्स में बहुत अच्छा अनुभव है। शशि माहेश्वरी जो कि हमारी प्रमोटर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनका अकाउंट्स में और लीगल्स में बहुत अच्छा नॉलेज है। इन्होंने लॉ भी किया हुआ है और ये लीगल्स की मास्टर है। नेक्स्ट, ये हमारे तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। श्री नरेंद्र जी काबरा जो कि बैंकर्स थे और आज की तारीख में इनका सलाह और जो भी चीजें हैं बहुत उपयोगी है। साथ में ही धर्मेंद्र जी पवार हैं और सिद्धार्थ शंकर जी महाजन हैं जो कि 10-20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका अपना अनुभव एक अलग ही है। नेक्स्ट, की मैनेजमेंट पर्सन में सुनील माहेश्वरी, अनिल माहेश्वरी एंड सुरभि मोदी जो कि हमारी सीएसए और कंपनी की कंप्लायंस ऑफिसर भी। नेक्स्ट, ये पूरा हमारा ग्रोथ चार्ट है, जो रेवेन्यू हमारे कैसे कैसे रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रही है, एबिटा मार्जिन हमारा कैसा रहा है। नेक्स्ट, हम लोग जिस मार्केट में वो बहुत ही ग्रोथफुल मार्केट है जो कि 100 बिलियन के आसपास 2030 में टच करेगा। नेक्स्ट, जिस इंडस्ट्री को हम कर रहे हैं वो काफी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है जो कि हर चीज में आने वाले समय में पैकेजिंग में काम में आएगी और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा जब प्लास्टिक पैकेजिंग से हम लोग रिमूव होंगे पूरी तरीके से। अभी तो हम केवल सिंगल यूज प्लास्टिक से ही रिमूव हो रहे हैं, उसमें हमारी उपयोगिता इतनी है। जब नेक्स्ट आने वाले समय में हम जब पूरी तरीके से प्लास्टिक मुक्त होंगे तो यही एक इंडस्ट्री है जो हमको बहुत आगे तक लेके जाएगी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल चीजों के लिए एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो हमारी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो पी कोटिंग, पीएलए कोटिंग, बैरियर कोटिंग और ग्रीस प्रूफ पेपर, ग्रीस स्लिप पेपर और शुगर पेपर और अन्य पेपर, बैकऑन पेपर, जो कि बैकऑन पेपर जो आने वाले समय की बहुत ज्यादा उपयोगिता की चीज रहेगी क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में भी वही स्थिति होगी जो आज यूएस, यूके और अदर कंट्रियों में, यहाँ पर भी सर्वेंट नहीं उपलब्ध होंगे। तब एकमात्र पेपर प्रोडक्ट ही ऐसा होगा जो किचन में गृहिणियों का सहयोग करने वाला होगा जहां पर उनको साफ सफाई से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट, ये हमारा ग्रोथ चार्ट है और प्रोडक्शन चार्ट है। नेक्स्ट, ये क्वालिटी और कैपेसिटी का चार्ट है और पूरे प्लांट के फोटो है हमारे। नेक्स्ट, अभी जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो 88% हमारा डोमेस्टिक मार्केट में शेयर है, 12% हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में शेयर है और निश्चित तौर से अभी जो गवर्नमेंट की यूके के साथ में संधि हुई है उसमें हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ेगा। आज भी हमारे यहाँ एक यूके की फूड चेन आई हुई है जो कि हमसे पूर्व में 3 कंटेनर्स मटेरियल लेती थी, वो 25 कंटेनर्स का हमें ऑर्डर कर रही है। अभी अनिल जी उन्हीं के साथ व्यस्त है क्योंकि हमारे अनिल जी की पर्सन है सेल्स के, तो वो पूरा अभी उन्हीं के साथ व्यस्त है। नेक्स्ट, ये पूरी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये पूरा हमारी ग्रोथ और जर्नी रही है सर। आप आगे पूछें जब पूछना चाहते हैं। सर क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करना है? हाँ जी, करिए आप। ओके,
1 second, please. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. To ask a question, please click on the Q&A tab on the panel and click on Raise Hand button. The operator will announce your name when it is your turn to ask a question. Please accept the prompt on your screen and unmute your microphone while proceeding with your question. You may also post your text questions. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We'll take our first question from Darshil Zaveri from Crown Capital. Darshil, please go ahead. Hello. Good Yes, morning, sir. Hopefully, I'm audible. yes, please go ahead. Yeah, hi, sir. So, firstly, thank you so much for a detailed presentation. I just wanted to know कि अपना in FY 23 and 24 there was a dip in revenue. So, what was the cause of that dip in revenue, and how in FY 25 you were able to see such a good jump? सर जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने मार्क किया। 2023-24 में आपको लगा कि हमारा रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, हमारा सर वहां पर रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया, वहां पर हमारी क्वांटिटी बढ़ी है, टनेज बढ़ा है। 2023-24 में कोविड के बाद में हमारा जो 19-20 में जब कोविड चालू हुआ तो हमारे पेपर प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा तेजी आई और जो 55 रुपए किलो के पेपर प्रोडक्ट थे वो 94 रुपए किलो पर जाकर के बिकना चालू हो गए थे और 94 रुपए से वापस जो डीप बनी वो 2023 के आसपास बनी, जो कि वापस 64 रुपए पे आकर के सेटल हुए। तो वहां पर हमारी क्वांटिटी तो बढ़ी है परंतु हमारा रेवेन्यू घटा है, यही कारण है। और 2024 में जो हमारे मार्जिन बढ़े हैं और रेवेन्यू वापस इंप्रूव हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी जो बायोडिग्रेडेबल की मशीन चालू हुई, उससे हमारे रेवेन्यू बहुत अच्छे बढ़े हैं। और जैसा कि आप एक एसएमई इंडस्ट्री को देखेंगे, एसएमई इंडस्ट्री के पास शुरू के 5 से 7 सालों में डेवलपमेंट करने में पैसा उसका बहुत ज्यादा लगता है, उसके पास स्टार्टिंग में इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बहुत होती है। और आप देखेंगे कि हमारा सारा जो मार्जिन है और सब चीजें वो सुधरते 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 आगे तक 2024 में जाकर के बहुत अच्छी हो गई। तो जो हम लोग बायोडिग्रेडेबल की मशीन लेके आए उसके अर्ली मूवर्स एडवांटेज मिले हमारे, इसलिए 2024-25 में हमारे और 2024 में हमारे रेवेन्यू बढ़े और साथ में हमारे मार्जिन भी बढ़े। ओके ओके, फेयर इनफ सर। एंड अभी जो नया केपेक्स है उससे अपना क्या रेवेन्यू पोटेंशियल है? अपन अराउंड 15 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब कब पूरा कंप्लीट होएगा प्लांट, एंड देन हाउ मच रेवेन्यू कैन वी एक्सपेक्ट सर? सर जो हम लोगों का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 6000 टन से बढ़ने वाला है। जो नई मशीन लेके आ रहे हैं अभी 15000 टन पे काम कर रहे हैं, 21000 टन पे पहुंच जाएंगे हम लोग और वो 2000 अप्रैल 2026 में चालू हो जाएगी। और जैसा कि अभी हमारा हम वर्किंग कैपिटल में पैसा डाल रहे हैं, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है एक साल में 3 बार 4 बार रोटेट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो साइकिल होता है वो 90 से 120 दिन का होता है। तो तकरीबन 4 बार के आसपास हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल चलता है। तो 20 करोड़ रुपए हम वर्किंग कैपिटल में बढ़ा रहे हैं और अभी हमारे पास 15% की कैपेसिटी बची हुई है। उससे हम जहां तक समझते हैं कि इस साल में हमारा रेवेन्यू 160 करोड़ रुपए और नेक्स्ट ईयर जो 26-27 का रहेगा वहां पर करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। और उसी के हिसाब से हमारा जो पेट मार्जिन है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज अगर 9% मार्जिन है और अगर ब्याज की मार हमारी कम होती है और हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा मिलती है पूरी इधर से, तो निश्चित तौर से हमारा पेट मार्जिन भी बढ़ेगा। Oh, okay, perfect. That helps a lot, sir. And so अपना PAT margin like currently जो नया capacity कर रहे हैं वो और high margin product पे है, तो optimally क्या हो सकता है in general, like not maybe next year but in general what is the PAT margin that we are targeting, sir? सर देखिए, मैं आपको अभी इन जनरल ही बता पाऊंगा, एग्जैक्ट तो हाँ नंबर आएंगे तब सभी को पता लगेगा ही। और हाँ आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों को एक हैंडसम पेट मार्जिन मिलेगा।
तकरीबन जो चालू साल है उसके अंदर 10 से 11% और उसके नेक्स्ट ईयर 12 से 14% के बीच में पेट मार्जिन आने की संभावना है। और बाकी तो सब जब नई चीजें आती है तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और सब चीजें होती है, परंतु हमारी R&D टीम बहुत सक्षम है, जिन्होंने जैसे भी हमारे यहाँ जो भी मशीन की लाइन लेके आते हैं हम लोग, तो मशीन कहीं और से लेते हैं, उसके कुछ स्पेयर किसी और कंट्री से लेते हैं और वो भी हम 2 से 3 कंट्रियों से लेते हैं और उसको मशीन में हमारे यहाँ इंस्टॉल करके उसको पूरा R&D करके और फिर एक नया मशीन बनाते हैं और कार्य चालू करते हैं। Okay, okay, fair enough, sir. And sir, just wanted to know, अपना I think 60% of raw material group company से आता है, right? तो वो मतलब कैसे बेस पे ट्रांजैक्शन होता है, मतलब अपना वो खुद का प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं या फिर अपने को कैसे कॉस्ट पे देते हैं? हाउ डज वो कैसे वर्क करता है, सर? सर नेट डिस्कनेक्ट था, सॉरी फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? So अपना around 60% of raw material comes from group companies. So how does that transaction work? मतलब वो arm's length पे होता है या फिर कैसे, मतलब cost पे होता है, क्या होता सर है जो like? 60% हमारा ग्रुप कंपनी से रॉ मटेरियल आता है उसका एक कारण है, जो हमारा पेपर प्रोडक्ट है, जो वर्जिन पेपर है, वो इंडिया में मात्र 4 कंपनियां बनाती है अभी, TNPL, ITC, सेंचुरी एंड वेस्कोर्स। बाकी जो बी क्लास मिल है वो है, तो बी क्लास मिलों का प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना ए क्लास का है और यहाँ कोटा सिस्टम है। तो हम लोगों ने जो हमारी ग्रुप कंपनी है विशेषकर फुटपैक इंडस्ट्री, वहां पर उनको और आराध्य डिस्पोजल को दोनों को रजिस्टर्ड करा रखा है और एक कोटा दोनों कंपनियों के लिए ले रखा है, जो कि उपयोग पूरा आप देखेंगे कि आराध्य में जो भी मटेरियल आता है वो फुटपैक से आता है 40-50%। तो उसका कारण वही है मेजर कि वो कोटा सिस्टम है, इसलिए हम लोगों ने 2 यूनिट्स बनाई हुई है, बाकी और कोई कारण नहीं है यूनिट्स बनाने का। Okay, okay. So आगे जाके ये Darshil, कंपनी भी I'm sorry okay, to okay. interrupt. May I request you to join back, please? Thank you. We'll take our next question from Urmish Shah from Moneyvisors. Please go ahead with your question. Yes, Urmish, thank please. you. I hope I'm Yes. audible. Yes, please go ahead. Yeah. So मेरे को ये जानना था, प्रीवियस पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि 60% रॉ मटेरियल हमारे ग्रुप कंपनी से आ रहा है, राइट? तो हमारे पास क्या प्राइसिंग पावर है जो हम डायरेक्टली क्लाइंट्स को बेचते हैं इन कंपैरिजन टू आवर कॉम्पिटिटर्स? हम क्या प्राइसिंग लगाते हैं जिसके वजह से हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमसे कम फायदा रहता है और हमें ज्यादा फायदा रहता है? और हम कैसे प्राइसिंग एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस? सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको बताना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में ही। सर जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो सबसे पहली बात तो अनऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटर है, जो कि पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज है। अब उनकी जो क्वांटिटी होती है वो 100 टन होती है, 50 टन होती है मैक्सिमम, और जो हमारी क्वांटिटी होती है वो 1200 टन के आसपास होती है आज की तारीख में, जो आगे जाकर के 1800 टन के आसपास हो जाएगी। तो जब 1200 टन के लिए हम बाइंग करते हैं मिलों से, तो उसी 1200 टन की पावर पे बाइंग करते हैं और हर एक मिल के अपने अपने एक इंसेंटिव होते हैं, 100 टन पे 100 टन खरीदने पे इतना मिलेगा, 200 टन पे इतना मिलेगा, 300 टन पे उतना मिलेगा। तो हम जो भी हमारी कंपनियों से खरीदी करते हैं मैक्सिमम टनेज पे खरीदी करते हैं, जिससे हम लोगों को सारे प्रॉफिट पासान होते हैं, उनके जो टारगेट्स होते हैं वो सब पासान हो जाते हैं और जितने भी इंसेंटिव होते हैं वो सब मिलते हैं। इसीलिए हम एक तो उनके सामने कंपटीशन में अच्छी जगह पर खड़े हुए होते हैं, हमें पेपर खरीदने में ही 2 रुपए किलो का फायदा हो जाता है। सेकंड, हमारी जो मशीन की क्वालिटी है और जो हमारी R&D टीम है, उसने जो हमारे यहाँ सिस्टम सेट कर रखे हैं और R&D कर रखी है, उससे हमारी क्वालिटी बहुत इंप्रूव है और क्वालिटी का पैसा तो बाजार में मिलता ही है। आज भी मारुति 800 भी बिकती है और रेंज रोवर भी बिक रही है और मर्सिडीज की गाड़ियां भी बिक रही है, सभी अपने अपने प्राइस पे बिक रही है। तो ऐसा नहीं कि साहब वो मारुति भी 2 लाख रुपए की गाड़ी है और वो भी 4 ही लोगों को बिठा रही है, और मर्सिडीज भी 2 करोड़ की गाड़ी है और वो भी 4 लोगों को बिठा रही है। तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी लॉयल्टी है, तो उसी हिसाब से वो बिकता है और उसके हिसाब से उसकी रेवेन्यू मिलती है उस बाजार में। अच्छा सर, आप बोल रहे हो कि मार्केट ज्यादा करके अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप आगे चल के ये परसीव कर रहे हो कि वो कंसोलिडेशन होगा? सर क्या है, जब तक वो कंसोलिडेशन होता है, जब तक तो हम और भी आगे ग्रोथ कर चुके होंगे, हम और आगे पहुंच चुके होंगे, तो हमें उस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है
कि मार्केट कंसोलिडेट होगा तो हम क्या करेंगे। हम जो कर रहे हैं, जो हमारी R&D टीम कर रही है, अभी तो हम लोगों ने जो प्लास्टिक का पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट है उस पर काम करना चालू कर दिया है। और आज की तारीख में तो हम व्यक्ति से ये पूछते हैं आपको क्या पैक करना है, आप वो बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देते हैं पेपर के अंदर। इसलिए हमें उस बात की चिंता नहीं कि अब मार्केट कहाँ जाएगा। हम पेपर कप से भी पूरी तरीके से मूव हो चुके हैं और आगे जिन लोगों को जो आवश्यकता है वो कार्य करना चालू कर दिया है। तो अब हम R&D प्रोडक्ट करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं बनस्पत की रेगुलर प्रोडक्ट। ओके सर, और जो हमारी नई कैपेसिटी आ रही है 6000 मेट्रिक टन जो आपने बोला, वो केटर करेगी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को, या आपके विजन है कि शायद वो एक्सपोर्ट को ही केटर करेगी? सर दोनों को बोथ बोथ साइज कैटर करेगी सर। और आज की तारीख में एक्सपोर्ट तो अपनी जगह है। इंडिया का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि हर कंट्री चाहती है कि जहां पर हम सप्लाई करें। अभी आप देखिए यूएस किस तरीके से अपनी ड्यूटी जीरो कराने के लिए अड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति को अपना मार्केट दिख रहा है। तो अपना मार्केट ही उतना बड़ा है कि हमें एक्सपोर्ट मार्केट की बहुत आवश्यकता नहीं है। परंतु चूंकि एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया का वर्चस्व होना चाहिए और बोला बाला होना चाहिए, इसलिए हम एक्सपोर्ट मार्केट पे भी जाने का प्रयास कर ही रहे हैं और आज कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में काम। और आगे जाके अभी और करेंगे। आज ही हमारे यहाँ जो एक पार्टी आई हुई है वो लंदन से आई हुई है और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल लेने की बात कर रही है। ठीक है सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि आप जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आपने बात की अपने प्रेजेंटेशन में 84% के आसपास मेरे को जो दिख रहा है, तो वो जी आपके ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है या वो शायद 90 तक जा सकता है आफ्टर सर यू वो स्ट्रीमलाइन अभी योर प्रोसेस? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो अभी 95 से लेकर के 98% तक जा सकता है। जो ब्रेकडाउन्स होते हैं किसी कारण से उन पर हमारी R&D टीम रेगुलर काम कर रही है और अभी हमारी R&D ने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। तो वो इस साल 95% से ऊपर पे जाएगा सर। और आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल आपने 90 डेज बोला ना, मैं वो पॉइंट मिस कर गया। 90 से 120 डेज तक है सर। डिपेंड 90 to ऑन 120 डेज। कस्टमर्स और डिपेंड ऑन सीजन। हमारे इसमें एक बारिश का ऑफ सीजन रहता है जहां पर हमारे वर्किंग साइकिल 150 डेज तक भी जाते हैं। और जब ओके, सीजन चलता है तो हमारा वर्किंग साइकिल 90 दिन में और 60 दिन में भी होता है। तो एक 120 दिन एवरेज में बोलूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, please click on the QA tab on your panel and click on the raise hand button. We'll take some text questions. First question is from Rajveer S from HNI. Hello sir, good morning. My question is what is our projections after new machinery installation? Also, are dealers selling paper under our name? प्लीज एक बार रिपीट करेंगे हिंदी में। So हिंदी में तो नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ. My question is what is our projections after new machinery installation? Also, are dealers selling paper under our name? जो हमारी नई मशीन आ रही है उससे 6000 टन की कैपेसिटी और अनाउंस होगी। और आपका डीलर के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा हिंदी में बता पाएंगे। So ये टेक्स्ट क्वेश्चन है. राजवीर, अगर आप क्यू में आ सकते हैं प्लीज रेज हैंड बट क्लिक कीजिए. क्या मैं तब तक वॉइस क्वेश्चन लेती हूँ सर. दर्शिल जवेरी फ्रॉम क्राउन कैपिटल. दर्शिल, Hello. प्लीज गो अहेड. या Yeah, thank you so much for taking my question again. सर, अपना जो ऐसा एक्सपोर्ट का बोल रहे थे, तो ये अभी यूके के साथ ट्रेड डील हुआ तो उसमें कुछ हेल्प मिलता है अपने को, या फिर अभी यूएस में अपन एक्सपोर्ट करते थे तो टैरिफ की वजह से कुछ इम्पैक्ट है? कुछ आप बोल सकते हो उसके बारे में? सर यूएस में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम यूके में जो 3 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे थे आज वो हमारे पास आए हुए हैं और 25 कंटेनर की डिमांड कर रहे हैं। तो यूके की जो ट्रेड डील हुई है वो हमारे लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुई है। और यूएस से हमारा कोई ट्रेड नहीं है अभी। और अगर यूएस के साथ कोई ट्रेड डील होती है तो हो सकता है यूएस में ट्रेड संभव हो। कनाडा और यूएस अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं है सर। Okay. And sir, like अभी these guys are asking 25 containers, तो उसमें अपना मतलब मार्जिन एक्सपोर्ट में बेटर होता है, डोमेस्टिक में कैसे होता है, क्या हेल्पफुल रहता है अपने लिए सर? सर
डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, निश्चित तौर से एक्सपोर्ट में मार्जिन भी अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट का इंसेंटिव भी मिलते हैं, तो निश्चित तौर से डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट में बेनिफिट ज्यादा ही है सर। अच्छा, ओके 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 ओके, तो दैट्स, तो मतलब आगे जाके अपना मार्जिन और बेटर हो सकता है अगर थोड़ा एक्सपोर्ट का जैसे जैसे बढ़ते गया। सर जिस तरीके से मोदी जी लगे हुए हैं और उनका जो विजन है, और अगर समझ लीजिए यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील भी संभव होता है, जो बातचीत चल रही है, तो हम हमारे जो कैपेसिटी है उसमें से एक बहुत हैंडसम कैपेसिटी एक्सपोर्ट की तरफ डाइवर्ट होते हुए देखेंगे। आज की तारीख में हमारा गल्फ में भी जो एक्सपोर्ट चल रहा है, वहां पर भी जो गवर्नमेंट की ट्रेड डील हुई है, वहां पर भी गवर्नमेंट हमारा जो मटेरियल है वो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पे जा रहा है। तो वो लोग भी हमसे पूरा पूरा 12% के आसपास आज की तारीख में हमसे मटेरियल ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके, फेयर इनफ। एंड सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, अपना कोई बड़ा प्लेयर कंपटीशन में है और आर वी द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री, तो मतलब आप बोल रहे थे कि सप्लायर ये लेते, तो अभी इंडिया का नीड कोई लोग इंपोर्ट करके आर दे फुलफिलिंग, और हाउ इज द लैंडस्केप लाइक, कि कोई और दो प्लेयर्स है या तीन प्लेयर्स बड़े हैं और आर वी द मेजर चंक एंड अपन ही नया कैटेगरी खुद के लिए बना रहे हैं, तो हाउ इज दैट सर? आप एक थोड़ा सर कंपेटिटिव देखिए क्या है, लैंडस्केप बोल सकते हो तो। हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को सप्लाई करते हैं पूरी तरीके से, तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज में तब्दील होने में बहुत समय लगता है, और उसको समय इसलिए लगता है कि उनके सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारी तकलीफें होती है। आज हम कैसे नीचे से उठकर ऊपर आए वो हमें ही पता है। स्टार्टिंग में फंड्स नहीं मिलते हैं, हर चीज के लिए नई R&D टीम, सब डेवलप करना, सब चीजें डेवलपमेंट में आज की तारीख में बहुत पैसा लगता है सर। तो अभी तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं जो एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें बनाता है। अभी कुछ कॉम्पिटिटर्स जरूर ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर एक आइटम बना रहे हैं, वो और वो एक आइटम में हमको कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो चीजें बिल्कुल होगी। और बिजनेस है, या तो जितना कंपटीशन आएगा उतना बिजनेस बढ़ेगा। हमेशा कंपटीशन आने से बिजनेस बढ़ता है और मार्केट डेवलप होता है। हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में या 5-6 प्लेयर अच्छे आए, ताकि विश्व मार्केट को हमारा मार्केट दिखे और वो यहाँ पर ज्यादा आए और हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। अच्छा, ओके ओके, फेयर इनफ सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट टेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल चंद्रा जी से, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। आप अपने कॉम्पिटिटर से क्या अलग करते हो? मैडम ये मैं आपको पहले भी 4 बार बता चुका हूँ, फिर वापस बता देता हूँ। हमारी जो R&D की टीम है वो हमारे को एक अलग जगह हमारे कॉम्पिटिटर से खड़ा करती है। दूसरा, जो हमारी बल्क बाइंग है वो हमारे कॉम्पिटिटर से हमको बहुत ऊंचा लेके जाती है। जो हमारा R&D प्रोडक्ट है और जो R&D टीम है, जब प्रोडक्ट ही बाजार में कोई और नहीं बना पा रहा है, तो हम तो निश्चित तौर से एक अलग जगह पर खड़े हुए ही हैं। थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल जैन जी का, आरपी फिनवेस्ट। रॉ मटेरियल का हाई कॉस्ट है, आप रॉ मटेरियल के प्राइसिंग से कैसे डील करते हो? मैडम जो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है बिल्कुल भी। हम हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फिक्स है। हम जो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग आती है उस पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सप्लाई करके आगे लोगों को सप्लाई करते हैं, तो हमारा मार्जिन कंस्टेंट है। और हमारी जो कॉस्ट है वो जो भी कॉस्ट आती है वो जोड़ करके ही हम आगे सप्लाई करते हैं। और हम जो भी प्राइसिंग देते हैं वो 1 महीने के लिए देते हैं और 1 महीने के लिए लेते हैं। हमारी जो मिलों से प्राइसिंग फिक्स होती है वो एवरी वन महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को फिक्स हो जाती है महीने भर के लिए। वही प्राइसिंग महीने भर चलती है। फिर 25 तारीख के आसपास हम नेक्स्ट महीने की प्राइस ले लेते हैं मिल से, और वो नेक्स्ट महीने की प्राइस फिक्स हो जाती है और 1 तारीख से हम नया प्राइस देना चालू कर देते हैं। तो उससे हमें कोई वॉलेटिलिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। Thank you. Participants who wish to ask a question are requested to click on the Q&A tab on your panel and click on raise hand button. Ladies and gentlemen, to ask a question, please click on the Q&A tab on the panel and click on the raise hand button.
We have a question from Disha Shah, an individual investor. She's just left the queue. सर एक टेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम दमानी फैमिली ऑफिस। ये वक्त में प्राइसिंग और डिमांड का माहौल कैसा है? आपको अगले 4 to 6 क्वार्टर्स में क्या उम्मीद है? जैसा कि हम लोगों ने बताया, हमारे जो प्राइसिंग की जो चीज है, जो पेपर मिल से प्राइसिंग आते हैं, उसी पे हम हमारी कॉस्ट जोड़ करके आगे प्राइसिंग देते हैं। और जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड, चूंकि जनता भी समझ चुकी है कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वो भी अवेयर हो चुकी है। हिंदुस्तान में काफी लोग अवेयर हैं, तो वो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी। जैसे जैसे हिंदुस्तान में लोग शिक्षित होंगे, आज वर्कर्स मिलना कम होंगे, किचन में हमारे प्रोडक्ट्स की ही जगह ज्यादा बनेगी गृहिणी के। उनका और एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार इंपोर्ट्स पर कोई एक्शन ले सकती है, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस या कोई और कदम? जब आज ही की तारीख में हमारे यहाँ इंपोर्ट वायबल नहीं है, तो सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी या मिनिमम प्राइसिंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी हम पेपर में, हमारे यहाँ जो हमारी फील्ड है उसमें इंपोर्ट वायबल नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। आप देखेंगे कि जहां पर अपने मैन्युफैक्चरर परेशान होते हैं, सरकार तुरंत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। दूसरे प्रोडक्ट्स पे लगा रही है तो ये तो कमोडिटी आइटम है, और सरकार अपने की अपने लिए बहुत ज्यादा सोचती है। आज देखेंगे, आज अगर यूएस से ट्रेड डील नहीं हो पा रही तो उसका कारण ही किसान है मात्र, कि किसान के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सुचारू रूप से अपने यहाँ बिकते रहे, इसीलिए गवर्नमेंट यूएस से ट्रेड डील उसी पॉइंट पर अड़ी हुई है। आप लोग सभी पढ़ ही रहे होंगे वो चीज। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा शाह, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। आईपीओ के बाद आप ब्रांड बिल्डिंग में, खासकर नए B2B या रिटेल मार्केट्स में एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स को कैसे बैलेंस करने वाले हैं, जबकि आपको अपना 15.6% एबिटा मार्जिन भी मेंटेन या इम्प्रूव करना है? मैडम, आने वाले समय में हमने आपको बताया हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम B2B मार्केट और B2C मार्केट दोनों ही कैप्चर करेंगे। अभी जो हमारे आइटम्स आ रहे हैं वो हमें B2C की तरफ भी लेके जाएंगे। अभी हम B2B कर रहे हैं, कुछ B2C भी कर रहे हैं। स्टेशनरी पे भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जो बच्चों के लिए काम में आते हैं और ऑफिस के लिए काम में आते हैं। तो उस चीज की हमें चिंता नहीं है, और ना तो एबिटा मार्जिन की चिंता है, ना हमें सेल्स की चिंता है, क्योंकि हमारी सेल्स की टीम बहुत ही अच्छी टीम है, जो कि आज भी हमारी कैपेसिटी फुल यूटिलाइज होती है और फुल पे चल रही है। Thank you. Ladies and gentlemen, for any further questions, please click on the Q&A tab on the panel and click on raise hand button. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Mr. Chandan Mishra, Head of Merchant Banking at Kambata Securities Limited, for closing comments. Over to you, Mr. Mishra. Mr. Chandan Mishra, I think you're on mute. Kindly unmute yourself. Maheshwari sir, आपसे कोई closing comments? मैडम, मेरी पूरी जर्नी मैं बता चुका हूँ, और बस क्लोजिंग कमेंट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले प्रोडक्ट हैं, मानव शरीर को सुरक्षित रखने वाले प्रोडक्ट हैं। इनकी कहीं पे भी मानव शरीर पे या पर्यावरण पे बैड इफेक्ट्स नहीं पड़ते हैं। तो आप हमारे साथ आएंगे तो पर्यावरण और व्यक्ति को दोनों को ही सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, on behalf of Aradhya Disposal Industries Limited, that concludes today's session. Thank you for your participation. You may now click on the exit meeting to disconnect. Thank you, everyone.